مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم بائبل مقدس کی کتابوں کے نام درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ نیا عہد نامہ۔ سب سے پہلے عنوان ہے فہرست کتب و مکتوبات۔ کتب، مکتوبات، یہ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ کتب جمع ہے کتاب کی، مکتوبات جمع ہے مکتوب کی۔ مکتوب کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا، نوشتہ، نامہ، خط۔ اس کا درست تلفظ ہے خط۔ خے کے اوپر زبر ہے، توئے کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حرف دو دفعہ ہے۔ خط جیسے ہے رد، رب، اسی طرح ہے خط۔ اور یہ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں، کتب، مکتوبات۔ عربی زبان میں کاف تے بے اس کا مصدر ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مادہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ یہاں سے نکلے ہیں۔ عربی میں اور عبرانی میں جتنے بھی روٹ ورڈ ہیں، مادے ہیں، یہ 3 حروف پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ عموماً قریباً 98% مادے 3 حروف پر مشتمل ہیں، عبرانی میں اور عربی زبان میں۔ کاف تے بے اس کا مطلب ہے لکھنا، تحریر کرنا، درج کرنا۔ اسی مادے سے الفاظ بنتے ہیں کتاب، کاتب، مکتب، جہاں لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے، کتابچہ، مکتبہ۔ مکتبہ کہتے ہیں کتب خانے کو، لائبریری کو۔ خط، کتابت، خط لکھنا۔ خط و کتابت غلط ہے، اس کا درست ہے املا خط کتابت، خط لکھنا۔ کتبہ یا کتابہ، اور یہ لفظ آیا ہے یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب کی 19ویں آیت میں، جب مسیح کی صلیب کے اوپر کتابہ لکھ کر لگا دیا گیا۔ کتابہ کا مطلب ہے رائٹنگ، تحریر، لکھا ہوا۔ آپ نے غور کیا کہ ان سارے الفاظ میں کاف تے بے، کاف تے بے ضرور آتا ہے، اور یہی ہے معاملہ کہ ہر وہ لفظ جس مادے سے بنتا ہے عموماً اس میں وہ حروف ضرور شامل ہوتے ہیں۔ کتب و مکتوبات، ان کے درمیان آیا ہے واو۔ یہ آیا ہے فارسی زبان سے ہمارے اردو میں۔ اسے واو عطف کہتے ہیں، اور حقیقت میں یہ اور کی مخفف صورت ہے۔ مخفف کا مطلب ہے خفیف کیا گیا، چھوٹا کیا گیا، شارٹ کیا گیا، مختصر کیا گیا۔ اور کی شارٹ فارم ہے واو۔ عربی میں اور عبرانی میں اس کا تلفظ ہے واو، لیکن اردو میں ہم اسے کہتے ہیں واو۔ اور عطف کا مطلب ہے پھرنا، راغب ہونا، ملانا۔ اگر دو الفاظ کے درمیان واو آئے تو یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی طرف راغب ہوتے ہیں، پھرتے ہیں، ملتے ہیں۔ تو جب بیچ میں واو ہوگا تو پھر پڑھیں گے کتب و مکتوبات۔ ان دونوں کو اس واو نے ملا دیا۔ یہ آیا ہے فارسی زبان سے اردو میں۔ عربی زبان میں الف لام لگا کر 2 الفاظ کو جوڑتے ہیں، مگر فارسی میں یہ قاعدہ ہے کہ بیچ میں واو لگاتے ہیں اور اسے واو عطف کہتے ہیں۔ واو سے پہلے آنے والے لفظ کو کہتے ہیں معطوف علیہ، اور واو کے بعد لفظ کو کہتے ہیں معطوف۔
ہندی زبان کے الفاظ میں حرف عطف کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ یہ آئے گا عربی زبان کے الفاظ میں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، یا فارسی الفاظ کے درمیان، یا اگر ایک لفظ فارسی کا ہے اور دوسرا عربی زبان کا ہے تو پھر بیچ میں واو عطف آتا ہے۔ اب میں ہندی زبان کے الفاظ کی مثالیں دیتا ہوں جو ہیں تو دو الفاظ، مگر ان میں واو نہیں آئے گا۔ اگر واو لگائیں گے تو یہ اصولاً قاعدے کے اعتبار سے غلط ہو جائے گا۔ جیسے ہے سوچ بچار، چال ڈھال، سج دج، چیخ پکار۔ اگر آپ پڑھتے ہیں چیخو پکار یہ غلط ہوگا۔ مار دھاڑ، بھاگ دوڑ، یہ سارے کے سارے ہندی زبان کے ہیں اور واو کے بغیر لکھے جائیں گے۔ یہ ہے ہندی زبان کے اصول کا طریقہ۔ نئے عہد نامے کی پہلی کتاب ہے متی۔ متی تے کے اوپر تشدید ہے۔ متی کا مطلب ہے خدا کی بخشش، گفٹ آف گاڈ۔ یونانی زبان میں اس کا نام ہے متیاس۔ عبرانی میں اس کی پوری شکل ہے متیا۔ متیا، متیا کا مطلب ہے یہوہ کی بخشش، اور متیا کو شارٹ کر کے بنا دیا گیا ہے متی۔ یہودا اسکریوتی کی جگہ چنا گیا اور 12 شاگردوں کی جماعت میں شامل کیا گیا شخص متیا تھا۔ اس کا ذکر ہے پہلے اعمال پہلا باب اس کی 26ویں آیت۔ متی یا متیا کی ایک اور صورت امتائی یا امتائی ہے۔ یونا نبی کے باپ کا نام تھا امتائی۔ میں نے آج تک ہمیشہ لوگوں کو اسے غلط پڑھتے ہوئے سنا ہے، یونا بن امتائی، یونا بن امتائی، اور اسے لوگ غلط ہی پڑھتے ہیں، اور یہ متی کی ہی ایک شکل ہے۔ متی شارٹ فارم ہے، متیا، امتائی یہ دوسری شکلیں ہیں، اور متی شارٹ فارم ہے۔ ایک اور بات، متی کی انجیل، یہ انجیل نہیں ہے، اس کا تلفظ ہے انجیل، الف کے نیچے زیر ہے۔ انجیل کا مطلب ہے خوشخبری، خوشی کی بات، مجدہ، یہ ہے انجیل۔ انجیل دوسری کتاب ہے مرکس۔ مرکس ہے یونانی زبان کا لفظ۔ اصول یہ ہے یونانی زبان کے اسم یعنی ناؤنز جو اومیکرون اور سگما پر ختم ہوتے ہیں، اردو ترجمہ کاروں نے اس کے لیے ایک اصول وضع کیا ہے۔ اومیکرون کو پیش اور سگما کو سین لکھا گیا۔ مرکز کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی لیے نئے عہد نامے میں تقریباً سارے نام جو سین پر ختم ہوتے ہیں سین سے پچھلے حرف پر پیش آتا ہے۔ یہ نام جگہ کا بھی ہو سکتا ہے اور کسی شخص کا بھی۔ چند ایک مثالیں: اگبس، فلپس، گیوس، پنتیوس، پلاتوس۔ دیکھیں یہاں یہ وہ یونانی نام ہے جو سین پہ ختم ہوتے ہیں اور سین سے پچھلے حرف کے اوپر پیش آئے گا۔ یہ ہے اصول یونانی زبان کا، اور یہ نام ختم ہوتے ہیں اومیکرون اور سگما پہ۔ صرف 4 یا 5 نام مجھے نئے عہد نامے میں ایسے ملے جن پر اس اصول کا اطلاق نہیں ہوتا۔ میں نے یونانی کے کئی استادوں سے پوچھا، آج تک مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا کہ ایسا کیوں ہے۔ یہ نام یونانی کے ہیں مگر ان پر اس اصول کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بائبل کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے میں اعمال کی کتاب سے لے کر فلیمون کے نام خط تک ہر جگہ
मरकुस की काफ पर पेश था। अमाल 12वें बाब की 12वीं आयत में ये नाम आया। 25वीं आयत में तिमुथियुस के नाम दूसरे खत की चौथे बाब की 11वीं आयत में। फिलिमोन के नाम खत और आयत है 24वीं। यहाँ पर वो बाइबल का नुस्खा जो हाथ से लिखा हुआ था वहाँ काफ के ऊपर पेज था। जब कंप्यूटराइज्ड एडिशन बनाया गया तो उस पेज को खत्म कर दिया गया और यूं इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ करना मजीद मुश्किल हो गया है। काश इसे कायम रखा जाता तो आज ये गलती ना होती। मेरी तहकीक के मुताबिक इसका तलफ़ुज़ है मरकुस, और मैंने कई एक मिसालें भी आपको दी हैं। अगली किताब लूका। लूका का मतलब है रोशन करना, मुनव्वर। ये लातीनी जुबान के लफ्ज लूकियस से आया है और उसकी शॉर्ट फॉर्म है। अगला नाम है यूहन्ना। यूहन्ना का मतलब है यहोवा मेहरबान है, खुदा की बख्शिश, खुदा का फजल। लूका, यूहन्ना। आगे है रसूलों के अमाल। अमाल जमा है अमल की। इसके बाद है रूमियो। ऐसे नामों को पढ़ने का असूल ये है कि जो नाम यों पर ख़त्म होते हैं, ख़ास तौर पर ये खतूत के, तो यों से पहले आने वाले हर्फ के नीचे आता है जेर। यों से पहले है मीम, तो मीम के नीचे है जेर। ये पढ़ा जाएगा रूमियो, रूमियो। आगे है कुरिन्थियों। काफ के ऊपर पेश है, रे के नीचे जेर है, और थे के नीचे फिर जेर आएगा क्योंकि आगे यों है। कुरिन्थियों, कुरिन्थियों। आगे है गलतियों। इसको बिल्कुल लाइटली पढ़ना है, यहाँ तशदीद नहीं है। गलतियों, काफ के ऊपर भी जबर है, लाम के ऊपर भी जबर है, और ते के नीचे है जेर। आगे है यों, ये पढ़ा जाएगा गलतियों। फिर अगला नाम है इफिसियों। अलिफ के नीचे जेर है, फे के नीचे जेर है, और सीन के नीचे भी जेर है। इफिसियों, ये है इसका तलफ़ुज़, इफिसियों। अगला नाम है फिलिपियों। पे के ऊपर तशदीद है और नीचे जेर भी है। फे के नीचे जेर है, पे के ऊपर तशदीद, नीचे जेर। फिलिपियों, फिलिपियों। जहाँ पर ये नाम शुरू होते हैं, किताबें शुरू होती हैं, खतूत शुरू होते हैं, वहाँ इराब कुछ ज़्यादा वाज़े लगे हुए हैं। अगला नाम कुलुस्सियों, कुलुस्सियों। आगे नाम बहुत मुश्किल है, जो नए ऐदनामे में सबसे मुश्किल है। थिस्सलुनीकियों, 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 थिस्सलुनीकियों। ये है इसका दुरुस्त तलफ़ुज़। अगर आप इन किताबों के नाम किसी और तलफ़ुज़ के साथ पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो गलत है और काबिल कबूल नहीं है। आगे तिमुथियुस। यहाँ भी वही उसूल है, ये के ऊपर पेश और सीन आखिर में है। तिमुथियुस, थे के नीचे जेर। तिमुथियुस, तिमुथियुस, तिमुथियुस। आगे है तितुस। यहाँ भी वही असूल है जो मरकुस वाला है, तोय के ऊपर पेश और सीन। इसका तलफ़ुज़ है तोय। तोय ये हमारा पंजाबी अंदाज है, इसका उर्दू में तलफ़ुज़ होता है तोय, जोय। तितुस, तितुस। आगे बाइबल में जो खत है, बाइबल में उसके कोई इराब नहीं लगे, लेकिन अरबी बाइबल में सारे के सारे इराब लगे हैं। और अरबी बाइबल में इसे लिखा है फिलिमोन। मैं इसे फिलिमोन पढ़ता हूँ क्योंकि वहाँ पूरे इराब हैं, और एक गवाही भी है कि अरबी तर्जमे ने इसको
फिलिमोन लिखा है, लिहाजा मैं इसे फिलिमोन पढ़ता हूँ। फिलिमोन। आगे है इब्रानियों। यहाँ भी वही असूल है, यो से पहले है नून और नून के नीचे आएगा जेर। इब्रानियों। आगे नाम है याकूब। याकूब। अरबी जुबान में इसका मादा है आइन काफ बे। इसका मतलब है किसी के पीछे आना, एड़ी पकड़ना। इब्रानी और अरबी जुबान में एड़ी को अकब कहते हैं। इसी मादे से बढ़ने वाले कुछ अल्फाज। अकब, पीछे। आकिब, पीछा करने वाला। तआकुब करना, किसी की एड़ी के पीछे जाना, पीछा करना। आकिबत, उकबा, यानी आखिरत। किताब मुकद्दस में लिखा है कि जब याकूब और उसके भाई ईसाऊ की विलादत हुई तो याकूब ने अपने भाई की एड़ी पकड़ी हुई थी, इसलिए उसका नाम रखा गया याकूब, एड़ी पकड़ने वाला, पीछे आने वाला। ये पैदाइश 25वें बाब की 26वीं आयत में दर्ज है। लिहाजा याकूब का मतलब है पीछे आने वाला, एड़ी पकड़ने वाला। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे उर्दू तर्जमे पर इस्लामी असरात बहुत वाज़े हैं। वो लोग जिन्होंने किताब मुकद्दस के तराजम किए, इनको रिवाइज किया, इन पे काम किया, मैं उनकी जहानत को, उनकी दानिशमंदी को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ इस मुआशरे के लिए इन इस्तिलाहात को इस्तेमाल किया, नामों के वो तलफ़ुज़ मुतारफ़ कराए, वो इमला मुतारफ़ कराए जो हमारे मुसलमान भाई इस्तेमाल करते हैं, जो इस्लाम में आए हैं, जो कुरान मजीद में आए हैं, जो अहादीस की किताबों में आए हैं। जितने भी फरिश्तों के नाम इस्लाम में हैं, हम वैसा ही तलफ़ुज़ करते हैं। एक मिसाल है जिब्राइल। ये इब्रानी तलफ़ुज़ नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे मुआशरे में जिब्रील या जब्राइल इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये एल है, जिब्राइल नहीं है। अल्लामा इकबाल की शायरी की एक किताब है बाले जिब्रील, जिब्रील का पर। फिर जितने भी मुकद्दस किताबों के नाम हैं और जो कुरान मजीद में आए हैं, वो भी जूं के तूं हमारे तर्जमाकारों ने तर्जमे में लिख दिए। जैसे तौरात, जबूर, इंजील, ये यूनानी और इब्रानी नाम नहीं है। इब्रानी में तो है तोरा, इंजील है यूएंगलियोन। लेकिन एक पुल के तौर पर इस मुआशरे में खुदा के कलाम की तासीर के लिए मुनादी की गरज से ऐसे नामों को इस्तेमाल किया गया, ऐसे इमला इस्तेमाल किए गए। फिर अंबिया के नाम, शख्सियात के नाम, जैसे कि मूसा, इब्रानी में तो है मोशे। इसी तरह सुलेमान, सलमो, दाऊद, इब्रानी में है दावीद। याकूब, इब्रानी में है याकूब। इस्माइल, और इब्रानी में है इश्माइल। इसी तरह इसराइल, ये भी इस्लामी इसका तलफ़ुज़ है, यह है इसराइल, इब्रानी तलफ़ुज़ इसका। तो इतने ढेरों नाम हैं जो इस्लाम से हमारे उर्दू तर्जमे में आए हैं। यहाँ तक कि फिरऔन, शैतान, फिरदौस,
जन्नत, जहन्नम, ये भी सारे के सारे इस्लामी नाम हैं जो हमारे तर्जमाकारों ने अ, उर्दू तर्जमे में लिख दिए। और इसी बिना पर ये तर्जमा उन लोगों में भी मारूफ है, मकबूल है, जो गैर मसीही हैं, और वो आसानी से इन नामों की बदौलत इससे मुतारफ होते हैं, इसे जानते हैं, इसे समझते हैं। अगला नाम, मेरी तहकीक के मुताबिक ये पतरुस है, जैसे मरकुस, क्योंकि ये भी यूनानी नाम है, और ये भी ओमिक्रॉन और सिग्मा पे ख़त्म होता है। इस पर भी मरकुस वाला उसूल लागू होता है। चंद एक मिसालें, रूमियों के नाम खत के 16वें बाब की 21वीं आयत में है सोसिपत्रुस। फिर अमाल 20वें बाब में है पुरुष, सोपत्रुस। अमाल 21वें बाब की 3री आयत कुप्रुस। तिमोथियस के नाम दूसरा खत, पहला बाब 16वीं आयत, यहाँ पे नाम आया है 19 फरुस। यहाँ भी देखें, रे के ऊपर पेश है और आगे सीन है। ये सारे के सारे यूनानी नाम हैं। अगर यहाँ पे रे के ऊपर पेश हो सकता है, आखिर में सीन है, तो फिर पतरुस के रे के ऊपर पेश क्यों नहीं हो सकता? जैसे हाथ का लिखा हुआ नुस्खा, उसमें मरकुस के ऊपर का पेश छूट गया था, मुझे लगता है कि यहाँ भी पेश छूट गया, और इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ होना चाहिए पतरुस। जैसे मैंने आपको मिसालें दी, सोसिपत्रुस, पुरुष, सोपत्रुस, कुप्रुस, 19 फरुस। ये वो यूनानी नाम हैं जो रे पे खत्म होते हैं, सीन पे खत्म होते हैं, और रे के ऊपर है पेश। अगला नाम, यूहन्ना, यूहन्ना, यहूदा, यहूदा। आखिरी किताब है यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा। मुकाशफा, शीन के ऊपर भी जबर है, फे के ऊपर भी जबर है, ये है मुकाशफा। आरिफ का मतलब होता है जानने वाला, और अरबी जुबान में आइन रे फे, ये इसका रूट वर्ड है आरिफ का। इसका मतलब है जानना, इल्म होना। इस खानदान के अल्फाज हैं इरफान, तारुफ, मारूफ, उर्फ, मारिफत, तारीफ। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, इरफान, तारुफ, मारूफ, उर्फ, मारिफत, तारीफ। जरा गौर करें, जितने भी अल्फाज हैं ये हर किसी में आइन रे फे जरूर आता है, और यही एक मादे की खूबसूरती है कि उससे जितने भी अल्फाज बनते हैं, आम तौर पर उनमें वो 3 हरूफ जरूर शामिल होते हैं। अब आते हैं मुकाशफा की तरफ। मुकाशफा का मतलब है भेद का खुल जाना, राज से पर्दा उठ जाना। इसका मादा है काफ शीन फे, और इसका मतलब है भेद का जाहिर होना। इस मादे से बढ़ने वाले अल्फाज हैं कश्फ, काशिफ, इनकिशाफ, तकशीफ, मुनकशिफ। कश्फ, काशिफ, इनकिशाफ, तकशीफ, मुनकशफ। काशिफुल असरार, इसका मतलब है, काशिफ का मतलब है खोलने वाला, बेपर्दा करने वाला। इनकिशाफ करने वाला, भेद से पर्दा उठाने वाला। असरार जमा है सिर की, सीन जेर रे के ऊपर है तशदीद, सिर, सिर। सिर का मतलब है भेद, उसकी जमा है असरार, ज्यादा भेद। तो काशिफ है खोलने वाला, असरार है ज्यादा भेद।
बेदों को खोलने वाला, बेदों से पर्दा उठाने वाला, बेदों को बेपर्दा करने वाला, बेदों को अय्यां करने वाला, जाहिर करने वाला। ये था आज का हमारा सबक। पिछली दफा किसी ने एक सवाल किया था और मैंने वादा किया था कि उसका मैं जवाब दूंगा। सवाल ये था कि पेशीन गोई और पेश गोई में क्या फर्क है। बाइबल मुकद्दस में पेशीन गोई लिखा है, इसका तलफ़ुज़ पेशन नहीं है, पेशीन, पेशीन गोई। सलातीन की पहली किताब 22वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, वो मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशीन गोई करता है। पेशीन गोई बाइबल में कोई 12 दफा आया है। पेशीन पुराना इमला है, नया इमला है पेश गोई। पेश गोई बोलना भी आसान है और लिखना भी आसान है। हम MIK की सारी किताबों में अब पेश गोई लिखते हैं। पेशीन या पेश का मतलब होता है पहले, कब्ल। गोई का मस्तर है गुफ्तन। फारसी जुबान में गुफ्तन इसका मस्तर है, इसकी रूट है जहां से ये लफ्ज निकला है, बना है। गुफ्तन का मतलब होता है कहना, बोलना, बयान करना। इससे लफ्ज बनते हैं कम गो, कम बोलने वाला, गुफ्तगू, यूं गोया हुआ यानी यूं बोलने लगा, कुव्वते गोयाई, बोलने की कुव्वत, गुफ्तार, गुफ्तार का मतलब है बोलना, कलाम करना, गुफ्तो शुनीद, बोलना और सुनना। पेश गोई या पेशीन गोई का मतलब है किसी अमल के वकू पजीर होने से पहले बयान कर देना, बोल देना, बता देना। यह है पेश गोई या पेशीन गोई का मतलब। अगर बाइबल में लिखा है तो फिर इसे पढ़ेंगे पेशीन गोई। अगर अब लिखते हैं तो फिर इसे सादा किया जा सकता है पेश गोई। ये थी आज की क्लास। ये थी नए अहदनामे की किताबें दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ। मुसलसल मेहनत, दोहराई और मश्क के साथ आपका तलफ़ुज़ भी बेहतर हो सकता है।